Hello students, this is Ravinder Sehrawat and today I am going to discuss the last topic of chapter 2, that is factors affecting the choice of forms of business organization. Students, we have discussed so many forms of business organizations in our previous videos, like we have discussed sole proprietorship, we have discussed the partnership, we have discussed cooperative societies, we have discussed joint Hindu family business and joint stock company as well. So in all these types of businesses, there are certain merits and certain demerits as well. So based upon these merits and demerits, one has to decide that which one form of business organization should be selected. If a person going to start a new business or he is going to set up a new form of business, then in such a case he is having certain choices in front of him or her, like he has the option of sole proprietorship, partnership, cooperative society, joint stock company, joint Hindu family businesses. तो उसे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, विच वन ही शुड सिलेक्ट, दैट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स. वो जो मेरिट्स और डीमेरिट्स उनके होते हैं वही उनके फैक्टर्स भी बन जाते हैं. सो दीज फैक्टर्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये सारे फैक्टर्स हमें बहुत ध्यान से समझने होते हैं और फिर कंपैरिजन भी उनका करना होता है, सो दैट वी शुड टेक द राइट डिसीजन. सो विच आर द फैक्टर्स which affect the choice of forms of business organization, today we are going to discuss. First of all, we are having a factor, the name of which is nature of business. किस तरीके का बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, that is the important factor which affect the form of business organization's choice. Like if a business which requires personal attention and direct contact with the customers, or in which customized services or professional services are rendered to the customers, it could be possible only in sole proprietor. Sole proprietor में ही ये possible है कि हम अपने customers के साथ personal contact या personal attention बना कर रखें, because the limited number of customers are there in sole proprietorship as compared to company form of business. अगर हम company की बात करें वहाँ तो लाखों customers होते हैं, but if we talk about the sole proprietorship, the size of that business is small. That's why he must be having such business, or such businessman must be having a small customer base with him. So personal attention with small number of customers is much easier than a large section of customers. वहाँ जहाँ कंपनी में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं उसमें मेंटेनिंग अ पर्सनल अटेंशन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर इज नॉट पॉसिबल. आप लोग समझ सकते हैं इसको, लाइक जियो कितने ग्राहकों से पर्सनली अटैच्ड है या पर्सनल कॉन्टैक्ट में है, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कितने ग्राहकों के साथ रहती ही नहीं है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है थ्रू एड्स और द सर्विस इज रेंडर्ड बाय देम. बट इफ यू टॉक अबाउट योर टेलर, जो भी आपके टेलर होंगे उनकी अगर बात करें, उनके साथ आपका पर्सनल कांटेक्ट होगा, या फिर हेयर कटिंग सैलून, उनके साथ आपका कांटेक्ट पर्सनल होगा. तो दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक हेयर कटिंग सैलून और द हेयर ड्रेसर और द टेलरिंग शॉप और द बुटीक, इन सच अ बिजनेस दिस पर्सनल कॉन्टैक्ट और द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और द पर्सनल अटेंशन या फिर कस्टमाइज्ड या प्रोफेशनल सर्विसेज जो हमें रेंडर करनी है इज पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो अगर हमें पर्सनल अटेंशन वाला बिजनेस स्टार्ट करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, और अगर हमें ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है टू मेंटेन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और टू गिव पर्सनल अटेंशन टू द कस्टमर, वी शुड गो फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट, वी आर हैविंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सबको पता है अगर इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी वी नीड लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू the capital investment in sole proprietor or partnership. Sole proprietor business या partnership business can be start with limited capital, but company cannot be start
cannot be started with limited amount of capital, because in company we need to maintain a large or the कह सकते हैं हम कि or the huge asset base. In such assets we require to invest huge amount of capital. So the capital requirement in business like company is high as compared to sole proprietorship or partnership. So अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है, if we want to start the business with huge amount of capital, we should go for company. Of if we have a limited amount of capital or the limited amount of financial assets, we should go for sole proprietorship or the partnership form of business. Next one is degree of control. Degree of control का मतलब है कि how much we have the authority about the operations, decision making and the management of the business. बिजनेस को मैनेज करना, वहाँ पर क्या डिसीजन लेने क्या नहीं, द अथॉरिटी और द पावर और द कंट्रोल रिगार्डिंग दैट मैटर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि डिग्री ऑफ कंट्रोल भी अफेक्ट करता है कि हम किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करें. इफ ए पर्सन हु वांट्स अ फुल कंट्रोल ऑफ द ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, किस में रहता है वो? सोल प्रोप्राइटरशिप में. बिकॉज in sole proprietorship a single person has to control the entire operation of the business. But in company form of business there are large number of shareholders who all have authority to appoint the directors who may operate the business, who may manage the business on behalf of shareholders. फिर shareholders के हाथ में तो कंट्रोल रहता ही नहीं. ठीक है, they have the indirect control in company form of business. And in the same way in partnership as well, greater the number of partners, lesser will be the control per person or per partner in the business. यानी कि जितने ज़्यादा partners होंगे per partner control उतना ही कम होगा. But अगर हम बात करें sole proprietorship की, क्योंकि वहाँ पर single person होता है, तो फिर हमें sole proprietorship ही start करना चाहिए if we want to maintain a full control over the business. और अगर we are not control conscious, we have not any problem with sharing the control with other members, then we may start the company form of business. Next point, we are having the legal formalities. As we have already discussed, in sole proprietorship there is hardly any legal formality to follow except a licensing in few cases. कुछ एक केसेस को छोड़ के, जैसे अगर आपको ड्रगिस्ट बनना है, ड्रगिस्ट का मतलब होता है केमिस्ट शॉप खोलनी है, या फिर आपको कोई इस तरीके का और बिजनेस करना है, तो यू नीड टू एक्वायर द लाइसेंस फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी. बाकी के और केसेस में आपको कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो एक्ट और द लॉ विच गवर्न सच बिजनेस. यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए कोई गवर्निंग एक्ट है ही नहीं. तो यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज लीगल फॉर्मेलिटीज़. तो अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ से बचना चाहते हो, यू शुड गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. और इफ यू हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द लीगल फॉर्मेलिटीज़, इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट एंटरिंग इनटू ए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ फॉर्मिंग अ बिजनेस, यू मे गो फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. क्योंकि हमने पढ़ा कि द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज वेरी lengthy and complex. There are many kind of legal formalities that a promoter have to follow to get the company registered or to form the company. तो legal formalities किस में ज़्यादा होती हैं? कंपनी में. कम किस में होती हैं? पार्टनरशिप, sole proprietorship में. Because in partnership also it is optional to get the partnership form registered. It is not compulsory. However, it is compulsory to form a company विच इज़ रजिस्टर्ड. यानी कि कंपनी जो रजिस्टर्ड हो जाएगी वही फॉर्म की जा सकती है. विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन बी फॉर्म. तो वहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. तो जिसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कोई चिंता नहीं है, कंपनी के लिए जा सकता है. लेकिन जो व्यक्ति, ए पर्सन हु इज़ मोर कंसर्न अबाउट दीज लीगल फॉर्मेलिटीज़ और he or she did not want to enter in a lengthy procedure of forming a business, they may go for sole proprietorship or partnership. Next point, we are having the liability. Liability means the risk.
there are two types of liability: limited liability and unlimited liability. If a person who is desired to take higher risk, जिसे ज़्यादा रिस्क लेना है, go for sole proprietorship, go for partnership of business. Partnership form of business is also riskier because in sole proprietorship and partnership, the liability of a owner or the liability of a businessman or a partner is unlimited, means he is liable up to the extent of his personal assets. If business assets are not sufficient to pay off the business debts, then in such a case the personal assets of the owner और द पार्टनर में ऑल्सो भी सोल्ड ऑफ टू पे ऑफ सच बिजनेस डेब्ट्स. बिजनेस के कर्जे को चुकाने के लिए अगर बिजनेस के एसेट्स बेचने के बाद भी कर्जा बच जाता है तो जो मालिक होगा उसके पर्सनल एसेट्स यानी कि उसकी गाड़ी, उसका घर मकान या उसकी ज्वेलरीज वाइफ की या उसकी पर्सनल ज्वेलरीज या कोई भी उसके पर्सनल एसेट्स है वो बेचे जाएंगे. जब तक कि हम तब तक बेचते रहेंगे जब तक कि बिजनेस के सारे डेब्ट्स यानी कि कर्जे पूरे ना हो जाए. तो ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. बट इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम और द अमाउंट टू द एक्सटेंट विच इज नॉट पेड अप बाय देम. मीन्स कंपनी ने कोई शेयर 10 रुपये का बेचा है, 10 रुपये में से शेयर होल्डर ने 8 रुपये पे कर दिए. नाउ ही इज लाइबल टू पे 2 rupees more only. Beyond 2 rupees he is not liable to pay any single rupee of money. यानी कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जो हमारे मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उनको रिस्क कम होता है बिकॉज उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड. कहाँ तक? अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम. और उन शेयर्स पे भी जो मनी अनपेड होगी अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स सब्सक्राइब बाय देम. यानी कि जो उन्होंने शेयर्स खरीदे उन पर जितना अमाउंट अनपेड है उस एक्सटेंट तक उनकी लायबिलिटी होती है. वो तो पे करना होगा. मैंने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी तो 10 रुपये मुझे पे करने होंगे ना. तो वैसे ही शेयर्स में भी होता है. तो शेयर्स वाले केस में यानी कि कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रिस्क कम होता है क्योंकि वहाँ लायबिलिटी लिमिटेड है. वहाँ मेरे घर मकान या मेरी गाड़ी या फिर मेरे गहने नहीं बेचे जाएंगे. बट अगर मैं बात करूँ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की, वहाँ पर मेरा रिस्क ज़्यादा बिकॉज वहाँ पर मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. तो वाइल डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट पॉइंट ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड बाय द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एबिलिटी. मैनेजमेंट एबिलिटी, दिस इज ऑल्सो an important factor because a person who does not have the knowledge about managing the business and if he is going to start a business, then he has two options: whether to start the business with limited managerial abilities or to appoint a manager or to appoint a professional who will manage the business on his behalf. दो ऑप्शन उसके पास है. या तो जितना उसे आता है उसी एबिलिटी से वो बिजनेस मैनेज करे या फिर किसी को अपॉइंट कर दे सैलरी बेसिस पर जो उस बिजनेस को मैनेज करेगा. ठीक है. तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल इन द बिजनेस, सो दे मे नॉट अफोर्ड टू अपॉइंट सच एक्सपर्ट्स और द प्रोफेशनल मैनेजर्स. बट इन कंपनी form of business we have no problem regarding the finance. A company can afford to pay huge amount or the handsome amount as salary to the professional experts who will manage the business in better manner than the owners. तो कंपनी में तो कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, तो दे कैन अफोर्ड टू पे द हायर सैलरीज टू द एक्सपर्ट. तो वहाँ पर तो हमें मैनेजमेंट एबिलिटीज़ हैं या नहीं वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करेंगे ना जो मैनेज करेंगे. बट पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना पैसा नहीं होता टू अफोर्ड टू पे द हायर सैलरीज टू द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स. तो वहाँ पर तो हमें लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज से ही काम चलाना होगा. तो अगर हमें अपनी जितना हमें आता हो उस हिसाब से बिजनेस करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इज़ बेटर चॉइस फॉर अस. बट if we want to start a business with higher
मैनेजरल एबिलिटीज और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स से ही बिजनेस अगर हमें कराना है तो वो फिर कहाँ पॉसिबल है, कंपनी में, बिकॉज कंपनी कैन ओनली अफोर्ड टू पे सच हायर अमाउंट्स और रेम्युनरेशन टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, हम अपने ऑपरेशंस को कितना घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, मीन्स ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन. ये वाली चॉइस हमारे पास कहाँ है. देखो, हम चाह कर भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को ज़्यादा बड़े स्केल पर नहीं लेके जा सकते, बिकॉज ए सिंगल पर्सन कैन नॉट मैनेज a large scale business. Single person cannot manage the large scale business क्योंकि he has the time span which he has to spend on various kind of activities. As the scale of operation increases, such activities also increases, but he has the limited time. उसके पास तो टाइम लिमिटेड है ना. बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन हम करेंगे, लार्ज स्केल पर बिजनेस करेंगे तो बहुत सारे काम उसे मैनेज करने होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को उसे देखना होगा. बट ए सिंगल पर्सन कैन नॉट मैनेज टू ओवरसी ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम जो है बिजनेस को लार्ज स्केल पर नहीं लेके जा सकते, बट इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, वहाँ तो हमें थोड़ी देखना है. शेयर होल्डर्स आर नॉट गोइंग टू मैनेज द बिजनेस. बिजनेस विल बी मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर डायरेक्टर्स ही मैनेज करेंगे. तो साइज कितना भी बढ़ा सकते हैं हम, वहाँ पर फाइनेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन रखना है तो कंपनी इज बेटर. पार्टनरशिप में भी एक लिमिट के बाद हम जो है उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन वी कैन नॉट इंक्रीज. नेक्स्ट पॉइंट, वी आर हैविंग कॉन्टिन्यूटी. एज वी हैव डिस्कस्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज अ सिंगल पर्सन हु मैनेज ऑल द थिंग, एंड इफ सिंगल पर्सन इज met with an incident like accident, or he become unsound mind person, or imprisonment, or he become insolvent, ठीक है, there are, or he is died, then in such a case sole proprietorship business cannot be continued. That business must be stopped there. तो वहाँ पर ये बिजनेस बंद हो जाता है.